So good morning. We are here with your chapter, that is India, size and location. This is the very first chapter of your geography. This chapter, what I feel, will make you people feel proud of the country you are living in. The very first thing is that India is one of the ancient civilizations in the world. ये हमारी जो कंट्री है जिसके बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ा है. In class 6 you have already studied about the civilizations, and Indian civilization is the ancient civilizations. It means कि जितने भी आप advanced countries की बात कर लें, हमारी जो country है India, it had already been advanced a lot in the ancient time period. It have also achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. Decades क्या होता है? Period of 10 years. So, lot of development has been observed in the country in last, you can say, around 50 to 60 years. We got independence in 1947, and in class 8 you had already studied कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली उस टाइम पे हमारी कंट्रीज को कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो फेस करनी पड़ी. द प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, प्रॉब्लम ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री. Already the country was divided. Many of the resources now went to the other country. We were lacking the resources. Economic development was to be there. Besides this, many of the refugees from the other country, Pakistan, they were coming to our country. So the rehabilitation of those people, to provide them food, to provide them shelter, these all problems were there. And amongst these problems, the government had started working on the economic development also. आपने class 8 में पढ़ा हुआ है about the planning commission, right? कि कैसे प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया. फर्स्ट प्लान जो था हमारा 5-year प्लान, दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस, जिससे कि जो इंडस्ट्रीज थी वो बेटर हुई या डेवलप हुई. मोर स्ट्रेस वाज गिवन ऑन एग्रीकल्चर, राइट. देन द स्ट्रेस वाज गिवन ऑन द डैम्स एंड द इंडस्ट्रीज एंड द हेवी इंडस्ट्रीज रेदर, राइट. तो ये आपने पहले पढ़ा हुआ है कि कितना ज्यादा डेवलपमेंट के ऊपर जो गवर्नमेंट थी उसने स्ट्रेस दिया था. लेकिन अभी जो हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आज से 40 to 50 इयर्स बैक, इस टाइम पीरियड में ही इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो गई है, और इतने ही टाइम पीरियड में इंडिया हैज बीन एबल टू प्रूव इट्स एग्जिस्टेंस ऑन द वर्ल्ड मैप. जब तक इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, तब वर्ल्ड में जो कंट्रीज थी दे वर नॉट हैविंग वेरी गुड इंप्रेशन ऑफ आवर कंट्री. क्यों? क्योंकि द कंट्री वाज ऑलरेडी बीन अंडर द ब्रिटिशर्स, राइट. ब्रिटिशर्स ने उसको इतना ज्यादा स्पॉइल कर दिया था, इतना एक्सप्लॉइट कर दिया था, और द वर्ल्ड वाज हैविंग द इंप्रेशन दैट दिस कंट्री इज इकोनॉमिकली वेरी वीक. नो, इंडीड इट वाज देयर, right, but it has made a remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and even the economic development. और पिछले 40-50 सालों में ही इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है कि वर्ल्ड मैप पे इंडिया की जो पोजीशन है दैट हैज बीन से improved a lot. The countries of the world has started recognizing our country, and अभी का जो present scenario है वो तो ये है कि इंडिया एक इतनी समय स्ट्रॉन्ग कंट्री बन चुकी है कि many bigger countries are ready to develop the friendly relations with our country. वो तैयार है हमारी कंट्री के साथ इतने अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस रखने के लिए, इनके साथ कोलैबोरेट करने के लिए, क्योंकि हमारी कंट्री ऑलरेडी काफी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो चुकी है, और हमारा एक सोशियो कल्चरल लेवल ऐसा है कि दैट हैज आल्सो अट्रैक्टेड
the people a lot from the other countries. आप अगर थोड़ा सा रिकॉल कर पाए तो in your class 3, class 4, so variety you can say, be it in your you can say language, be it there in your say the clothes, the festivals, right? Many things are there which are you say ki are there which you can say are making the country a diverse one. चाहे वो लैंग्वेजेस ले लो या आप कल्चर ले लो, आप ड्रेस ले लो, फूड ले लो, फाइन वेराइटी इज देयर, right? So because of this variety only that our country is a diverse one, और इस variety के कारण the people are there all over the world who are attracted to our country, right? अब अगर क्लाइमेट की बात करते हैं हम तो वी आर हैविंग अ सेपरेट चैप्टर रेदर ऑन द क्लाइमेट, जिसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बट एक जनरल सा हम ले लेते हैं ओवरव्यू कि इस टाइम पे लाइक व्हेन इट इज वेरी हॉट इन द नॉर्थ इंडिया, if you go to south the temperature will be very equable, it's neither hot nor cold. when in winters in Punjab when it was too cold, जब हम लोग अच्छे से ब्लैंकेट और क्विल्ट्स में होते थे, at that time also साउथ में केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका, there is always a equivalent climate, वहां लोग स्वेटर से नहीं पहनते हैं, they don't require it. हमें हैरानी होती है ना, इवन अभी समर इतनी ज्यादा हो जाएगी कि यहाँ पर एसीज के बिना रह नहीं पाएंगे, और ये अगर आप तमिलनाडु में चल जाओ तो वहां पे दे डोंट रिक्वायर इट, और कई एरियाज तो ऐसे हैं जहाँ पे फैंस भी रिक्वायर्ड नहीं होते हैं. इट मस्ट बी साउंडिंग वेरी स्ट्रेंज टू यू. एनी हाउ आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट कि इतनी ज्यादा वेराइटी है, ये सारा है एक एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, राइट? फिजिकली वी कैन टॉक कि हमारी लोकेशन क्या है, हमारा साइज क्या है, और उस साइज के अकॉर्डिंगली वी कैन जस्ट टॉक अबाउट द डेवलपमेंट्स, राइट? Fine. What is the location? Location, if you see this map, right? ये है आपका वर्ल्ड मैप. अब इस वर्ल्ड मैप पे you can see कुछ dotted lines हैं, right? Some dotted lines are there. I will just see if it's possible to draw something. ये देखिए, ये है आपकी डॉटेड लाइन, एक ये रही, राइट? आई जस्ट चेंज द कलर, और दूसरी है ये. कुछ याद आ रहा है? छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स. सो दिस वन, ये जो हमने पिंक सा ये किया है, दिस वन, दिस इज इक्वेटर. ये जो लाइन है ये पूरी इक्वेटर है, दिस इज इक्वेटर, राइट? एंड द इसका जो डिग्रीज है, यू ऑल्सो नो कि इट इज 0 डिग्री. ये रहा आपका 0 डिग्री. 0 डिग्री जो है दैट इज इक्वेटर, राइट? अब ये आप देखेंगे कि लोकेशन क्या है हमारी, राइट? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द कंट्री इज, ये रही हमारी कंट्री, ओके? इक्वेटर से अगर आप इसकी लोकेशन प्रॉपरली चेक करें तो इट इज से 8 डिग्री अबव. आप थोड़ा सा इसको अगर आप देख पाएंगे, दिस इज 15 डिग्री. ये देखते हैं आप, ये 15 डिग्री है जहां पर मेरा पेन है, राइट? और ये 15 डिग्री से थोड़ा सा नीचे है ये. सो ये पता है कितनी डिग्री है? दिस इज 8 डिग्री 4 मिनट्स. इट इज 8 डिग्री 4 मिनट्स अबव द इक्वेटर. ये है अबव द इक्वेटर, सिर्फ 8 डिग्री है. जो हमारा कन्याकुमारी है ना, दैट इज ओनली 8 डिग्री अबव द इक्वेटर. एंड यू हैव ऑलरेडी डन दिस कि द एरियाज विच आर क्लोजर टू द इक्वेटर दैट आर हॉटर, एंड द एरियाज विच आर फार फ्रॉम द इक्वेटर आर कूलर. दैट्स वाई कि ये कन्याकुमारी का एरिया गर्म है, जब आप यहाँ जम्मू कश्मीर में आओगे तो दैट इज कूल, राइट? फिलहाल तो हम लोग लैटिट्यूड्स पढ़ रहे हैं, हमारी लोकेशन क्या है लैटिट्यूड्स पे. दिस इज 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ. यहाँ पे देखो, राइट?
8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। नॉर्थ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सारा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सॉरी मेरा थोड़ा सा नीचे आ गया। दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया की लोकेशन है, इट इज देयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, राइट? सो दैट्स व्हाई वी ऐड दिस इन। अब अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है दैट राइट द लैटिट्यूड्स और द लोकेशन ऑफ द कंट्री, इफ यू आर नॉट राइटिंग नॉर्थ, if you are not writing n, then the marks will not be given. Why? क्योंकि भाई 8 डिग्री साउथ भी तो हो सकता है। 8 डिग्री साउथ तो ये रहा, इंडिया यहाँ थोड़ी है, इंडिया तो नॉर्थ में है, राइट? सो हम नॉर्थ लिखेंगे, नॉर्थ इट इज, यू हैव टू राइट इट, राइट? नाउ इट इज 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर ये देखो यहां तक आ गया। ये क्या लैटिट्यूड आ रहा है? दिस वन इज 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। गॉट इट? तो हम इसको एक्सटेंड करते हैं 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक हमारी कंट्री स्प्रेडेड है, राइट? और ये डिस्टेंस किलोमीटर में पता है कितना है? किलोमीटर में इट इज अराउंड से 2900 किलोमीटर। इट इज अराउंड 2900 किलोमीटर, ठीक है? ये हो गया हमारा लैटिट्यूड। खाली लैटिट्यूड से लोकेशन नहीं होती है फिक्स। अगर हमें किसी चीज की लोकेशन, किसी प्लेस की लोकेशन ढूंढनी है तो वी मस्ट बी नोइंग अबाउट द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑल्सो। अब आपकी अगर मैं थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करूं तो यू मस्ट बी नोइंग कि लॉन्गिट्यूड्स हमेशा ईस्ट टू वेस्ट होते हैं, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट, और जो लैटिट्यूड होते हैं वो नॉर्थ टू साउथ होते हैं, राइट? सो नाउ लैटिट्यूड हमने कर लिया। नाउ लॉन्गिट्यूड क्या है हमारी कंट्री का? ये देखिए, यहां से हम यहां से मेंशन करते हैं, दिस इज गुजरात, ठीक है? ये है गुजरात, यहां से लेकर यहां तक ये। अब आप देखेंगे हम ये वाला क्यों नहीं ले रहे भाई, हमने एक्सटेंड जो एकदम कॉर्नर वाले जो एरियाज होते हैं ना वो लेते हैं। यहाँ भी तो हमने ऐसा लिया ना, जम्मू कश्मीर लिया हमने, यहाँ पे हमने कन्याकुमारी लिया, ठीक है? अब यहाँ पर हम क्या लेंगे? गुजरात के एरियाज, यहाँ से लेकर यहाँ तक, राइट? सो ये एरियाज जो हैं इनका लॉन्गिट्यूड क्या है? 68 डिग्री, ये देखो 68 डिग्री 7 मिनट्स। हम इसको रीड पता कैसे करते हैं? जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना कि ये 36 डिग्री और 6 के ऊपर एक डैश, एक कॉलन सा बना हुआ है, कॉमा सा है, उस कॉमा को हम मिनट्स रीड करते हैं। वी रीड इट एज मिनट्स, राइट? एनीहाउ इट इज 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। अब हमने इसको ईस्ट क्यों किया? बिकॉज इट इज अ लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड ईस्ट वेस्ट से ईस्ट तक जाते हैं। ये जो लाइन है दैट इज डिवाइडिंग द अर्थ इन टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल हेमिस्फीयर, दैट इज दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट। आप लोग कभी आपने ऑब्जर्व किया है, हम लोग व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉरेन कंट्रीज, हम नॉर्मली क्या कहते हैं यार, वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं दे आर वेरी डेवलप्ड। वेस्टर्न कंट्रीज कौन सी हैं? ये हैं कंट्रीज वेस्टर्न कंट्रीज, राइट? दीज आर द वेस्टर्न कंट्रीज, दीज आर द ईस्टर्न कंट्रीज, राइट? एशिया जो है वो ईस्टर्न कंट्री में आता है, गॉट इट? ये ईस्टर्न कंट्री में आता है। एनी हाउ हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड्स की। सो इट इज 68 डिग्री यहां पर है, यहां से लेकर ये स्प्रेड है ये यहां तक, दैट इज 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ये एरियाज कौन से हैं? ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया है एंड दिस इज द एरिया ऑफ गुजरात, राइट? तो ये एरिया यहां तक फैला हुआ एंड यू नो यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया है दैट इज ऑल्सो अराउंड 3000 किलोमीटर। तो डोंट यू फील दैट इट इज वेरी अमेजिंग टू सी कि हमारा नॉर्थ से साउथ डिस्टेंस भी ऑलमोस्ट सेम है, ईस्ट से वेस्ट डिस्टेंस भी सेम है,
राइट, किलोमीटर्स में भी और डिग्रीज में भी। अब अगर इनको आप माइनस करोगे ना, ये 37 और 8 डिग्रीज, सो इट्स अराउंड, अगेन आई एम सेइंग अराउंड 30 डिग्री। ये इसको भी अगर आप माइनस करोगे तो अराउंड 30 डिग्री। नॉर्थ से साउथ भी अराउंड 30 डिग्री डिफरेंस है, ईस्ट से वेस्ट भी अराउंड 30 डिग्री डिफरेंस है। अब इन डिफरेंस से क्या फर्क पड़ता है? व्हाट डिफरेंस डज दीज थिंग्स मेक? आई टेल यू। If the difference is there in the latitudes, so it affects the climate, right? जो latitudes होते हैं वो हमेशा climate को इफेक्ट करते हैं। जो areas, the areas which are closer to equator will be the warmer one, the areas away from the equator will be cooler one. एंड दैट्स द एरिया कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, ये तो बहुत ठंडी होती हैं, बहुत कूल होती हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम इक्वेटर, राइट? सो लैटिट्यूड्स का जो डिफरेंस होता है दैट लीड्स टू द डिफरेंस इन क्लाइमेट, वेयर एज द डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड्स, द डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड्स determine the time. आपके कितने सारे रिलेटिव्स जो होंगे वो शायद फॉरेन कंट्रीज में रह रहे होंगे, बीट कनाडा, बीट अमेरिका, बीट ऑस्ट्रेलिया, राइट? और जब आप उनसे बात करते होंगे तो यू मस्ट बी सेइंग कि यहाँ पे तो जी हमारे सुबह है, अरे तुम्हारे वहां पे तो रात हो गई है, या हमारे यहाँ पे तो 5 बज रहे हैं एंड तुम्हारे वहां पर तो अभी 12 ही बज रहे हैं, एंड सो ऑन, राइट? ऐसा आप लोगों ने बहुत बार ऑब्जर्व किया है और ये बड़ा एक कॉमन सा फिनोमिना है, राइट? व्हाई इट हैपेंस? ऐसा क्यों होता है कि एक जगह पे दिन है, एक जगह पे रात है और इतने सारे डिफरेंसेस जो है दैट इज लाइंग देयर? उसका एक रीजन ये होता है कि ये जो लाइन है ना आपकी, दिस वन, ये आप लोगों ने वैसे पुरानी क्लास में पढ़ा हुआ है, बट एक थोड़ा सा रिकॉल ही कर लेंगे। दिस लाइन में से टेढ़ा थोड़ा बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन होती है, इमेजिनरी है। दिस इज अ प्राइम मेरिडियन और इसकी डिग्री देखो 0 डिग्री, राइट? दिस इज द 0 डिग्री एंड दिस इज योर प्राइम मेरिडियन, फाइन। अब ये कौन सी जगह से पास होती है? अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यू विल से, अब जैसे मैंने बताया कि मेरे थोड़ी सी टेढ़ी सी लाइन आ रही है। सो यहाँ पर एक जगह है ग्रीनविच, ये है इंग्लैंड में, ये यहाँ पर एक जगह है ग्रीनविच जहां से ये लाइन एकदम स्ट्रेट पास होती है, राइट? सो ये लाइन जो है ये सेंटर ऑफ इंग्लैंड से पास होती है जहां पर जगह है ग्रीनविच, राइट? ग्रीनविच। सो वहां पे जो भी टाइम होगा उसके अकॉर्डिंगली बाकी जो कंट्रीज हैं उनका टाइम डिटरमाइन होगा, राइट? हाउ इट इज डन? सो सपोज ये ग्रीनविच है, यहां पर इस टाइम हो रहा है 12 नून, दिन के 12 बज गए। जो एरियाज इस प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है, ये सारा ईस्ट है, सारा ईस्ट है ये, ठीक है? तो जो एरियाज यहां पर ईस्ट में है वो प्राइम मेरिडियन से आगे होंगे और जो वेस्ट में है वो प्राइम मेरिडियन के टाइम से पीछे होंगे। अब आगे और पीछे कितना, हाउ मच, दैट वी हैव टू सी, एंड हाउ दैट इज डिटरमाइंड, दैट इज 1 डिग्री is equal to 4 minutes। ये कैलकुलेशन आपने याद रखनी है, ये क्लास 6 में भी किया है, व्हाट आई रिमेम्बर आप लोगों ने ना। ये कैलकुलेशन है कि 1 डिग्री का जो डिफरेंस है
that is equal to 4 minutes. Now suppose एक एरिया है जिसकी लोकेशन है 1 डिग्री ईस्ट, ये 0 डिग्री है जहां पर ये प्राइम मेरिडियन है। अब एक एरिया है जिसकी लोकेशन है 1 डिग्री ईस्ट, 1 डिग्री ईस्ट। अब वहां पे टाइम क्या होगा, वहां पर टाइम क्या होगा, अगर यहां पर 12 बज रहे हैं तो 1 डिग्री ईस्ट में क्या होगा, 12:04, 12 minutes, sorry, 12 hours and 4 minutes. Why? Because as I said, the areas which are lying east of the prime meridian, that are ahead of time. और जो एरियाज वेस्ट में है, सपोज एक एरिया है उसका उसकी लोकेशन है 1 डिग्री वेस्ट, तो वहां पर क्या टाइम हो रहा होगा, 11:56 AM। क्यों, क्योंकि ये 4 मिनट पीछे होगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू, और एक बॉटम लाइन क्या आती है, 15 डिग्री जो है उसके ऊपर 1 आवर का फर्क पड़ता है। 15 डिग्री के डिफरेंस पे 1 आवर का फर्क पड़ता है। सो व्हाट दीज टाइम लैग्स आर देयर, ये जो टाइम जोन्स हैं इतनी सारी, दिस वी विल अगेन डिस्कस इट टुमारो इन डिटेल।